پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اہم ترجیح۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ۔ کراچی میں چینی باشندوں پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت، ذمہ داروں کو قرار کی سزا دی جائے گی۔ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی چین کے سفیر سے گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد، چین کے سفیر جانگ زیڈانگ سے ملاقات۔ کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے، محسن نقوی۔ حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے آغاز پر 500 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 92,500 سے تجاوز کر گیا۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستان میں آسٹریلوی زرعی مہارت سے استفادے کا منصوبہ۔ حکومت خوراک اور دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے آسٹریلیا کی مہارت سے استفادہ کرے گی۔ زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، معیاری بیج اور اناج ذخیرہ کے نئے طریقوں کے اطلاق پر کام جاری۔ لائف سٹاک کے منصوبوں میں 20 ارب روپے کی سرمایہ کاری۔ £190 ملین نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ دن 1 بجے کے بعد سماعت کرے گا۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز دلائل دیں گے۔ ڈویژن بینچ نے احتساب عدالت کو کیس کے حتمی فیصلے سے روک رکھا ہے۔ نیب کی جانب سے ریفرنس کا ٹرائل مکمل۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے نیب کے آخری گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ناقص پالیسیاں، صوبے کے اساتذہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر۔ آل پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن کا اپ گریڈیشن اور دیگر مطالبات کے حوالے سے احتجاجی دھرنے کا تیسرا روز۔ صوبے بھر سے بڑی تعداد میں اساتذہ کی شرکت، 26,000 سرکاری اسکولوں کو تالے لگ گئے۔ ہر وقت جلسے جلوس کی آڑ میں فساد گروپ احتجاج ہمارا حق ہے کا نعرہ لگاتا ہے۔ وفاق پر چڑھائی کرنے والے پولیس اہلکاروں اور ریسکیو اہلکاروں کو ترقیاں اور اضافی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اپنے صوبے میں واقع پورم احتجاج کرنے والے اساتذہ کو احتجاج کرنے پر معطل کر دیتا ہے۔ واہ رے منافقت! صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ 6 نومبر 1947 جموں میں انسانی تاریخ کا ایک بدترین قتل عام ہوا۔ لاکھوں مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون۔ یوم شہدائے جموں پورے آزاد کشمیر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آزاد کشمیر بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ کشمیر مونیومنٹ مظفر آباد میں مرکزی تقریب میں سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ تقریب میں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھارت پر کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے کا الزام۔ را کی عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ کے منصوبے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن۔ سکھ برادری سمیت دیگر لوگوں کو آسٹریلیا میں محفوظ پناہ کا حق حاصل۔ کینیڈا کے عدالتی عمل کا احترام اور سکھوں کو نشانہ بنانے جیسے واقعات کی صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ سنہرے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں وکٹری سپیچ۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد۔
मशरक़ वुस्ता इसराइली जारहियत का शिकार सिहूनी फौज की गजा में बैतुल्लाहिया और नसीरात महाजिर कैंप पर हमलों में शिद्दत, मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद, 100 ज़ख्मी। लेबनान मशरक़ी इलाकों वादी बका और बलबत पर भी इसराइली हमले, 40 अफराद जाँ बहक, 53 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के तल अवीव में इसराइली फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले, हलाकतों की इत्तलात। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। स्मॉग की वजह से गले, सीने और आंखों के मरीजों की तादाद में इजाफा। इंतजामिया की शहरियों को एहतियात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्मॉग की शदीद सूरत हाल के बाइस पंजाब में स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मास्क की फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी है। मसाजिद से स्मॉग में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल करने के अलावा स्कूलों में स्मॉग के खिलाफ लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब। पंजाब पुलिस स्मॉग की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। क्रैकडाउन के दौरान 19 मुकदमा दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 19,291 अफराद को 3 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। पुलिस इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में महकमा माहौलियात के साथ करीबी राबते बरकरार रखे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। डेरा इस्माइल खान में शहरियों में एहसास मिल्कियत के फ़रोग़ के लिए FC के ताउन से दीवार अमन उम्मीद का इफ्तिताह। गवर्नमेंट बॉयज़ इस्लामिया कॉलेज नंबर 2 की दीवार पर हीरोज़ और शहदा की तस्वीर बनाई गई हैं। दीवार के इफ्तिताह में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका समेत सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। शहरियों ने दीवार को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मजबूत और अहमी ताल्लुक़ की अलामत करार दिया। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। APS लाहौर के बच्चों की जानिब से नया आलमी रिकॉर्ड कायम। लाहौर गिरिजन एजुकेशन सिस्टम के तलबा ने सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाया। इंसानी झंडा बनाने में 10,000 तलबा से हिस्सा लिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास था। नया आलमी रिकॉर्ड हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक्किद किए गए लाहौर यूथ फेस्टिवल में बनाया गया। डेरा गाजी खान में सखी सर्वर के करीब निजी तालीमी इदारे की स्टाफ वैन और ट्रक में तसादुम। ट्रैफिक हादसे में निजी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 असातिज़ा जाँ बहक, 7 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DG खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी क्यूरिस्ट मोहम्मद आसिफ को दोहा में IBFC वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप जीतकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान खेल के मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नवी थल डेजर्ट जीप रैली का आज से बाकायदा आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुनफरिद विजन, ऑटोमोबाइल टूरिज्म का फ़रोग़, जनूबी पंजाब की सकाफती और सियाहती तरक्की का अज़्म। वज़ीर आला की रैली में शरीक रेसर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कामयाबी की दुआएं। शरका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। डेजर्ट रैली में ख़वातीन ड्राइवर्स की शमूलियत खुशाइंद है। मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज दूसरा एक रोज़ा मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की एडिलेड ओवल में प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और यूफा चैंपियंस लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने सर्बियन क्लब रेड स्टार बलग्राद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी थी। इतालवी क्लब इंटर मिलान ने इंग्लिश क्लब आर्सेनल को 1 गोल से हरा दिया। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने पुर्तगीज क्लब बेनिफिका, इतालवी क्लब एटलेटिको मैड्रिड से फ्रांसीसी क्लब PSG को मात दे दी।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के सिफारत खाने गए और चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जांग ज़ाइडोंग से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान के देरीना दोस्त है। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को ज़िम्मेदारों को जल्द गिरफ्त में लेकर उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुलव्विस अफराद को गिरफ्त में लेने के अमल की बज़ात खुद निगरानी कर रहा हूँ। वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत की है। ज़ख्मी होने वालों की सेहत बेहतर हो रही है। चीन के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि वज़ीर-ए-आज़म वाक़े में मुलव्विस अफराद को जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के सफ़ीर जांग ज़िडोंग से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के ज़ख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से चीनी सफ़ीर को आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम तरक्की और सिक्योरिटी को मरबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। सीपैक मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए हिफाजती इक़दाम को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। मुलाकात में मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चीन दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बैनुल वज़ारती इजलास की तैयारियों और अबूज़बी पोर्ट्स के वफ़द के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे की ख़्वाह है। माशी इस्तेहकाम और तजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ बहुत अहम है। इजलास में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुजव्वज़ा मुआहिदों के हवाले से मुतल्लिक़ा वज़ारतों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रियाद में अहम मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाही महल आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में इलाकाई अमन, दिफा और सलामती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद की कोशिशों की तारीफ और पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ और सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबे में ताउन मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ और सऊदी मुआविन और वज़ीर दिफा तलाल अब्दुल्ला के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुलाकात में सऊदी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मज़ीद तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से। जी ज़ीशान, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, दिन के आगाज से ही आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी का रुझान मुस्बत रुझान पाया गया है और मुसलसल ये पूरा हफ्ता जो है तेज़ी का रुझान जो है मार्केट पे रहा है, जो इस बात की वाज़ेह अक्कासी कर रहा है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकार न सिर्फ सरमायाकारी कर रहे हैं बल्कि प्रॉफिट टेकिंग भी हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है अपनी बुलंद तरीन सतह की जानिब न सिर्फ गामजन है बल्कि उसको बरकरार भी रखा है। माशी माहिरीन के मुताबिक जो मार्केट में तेज़ी की वजूहात है, न सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद है बल्कि इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता दिनों 2.5% शरह सूद में कमी की गई थी, जिसके बाद पॉलिसी रेट अब 15% पर आ गया है और मालियती खसारा जो है 11 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। ये भी वो अवामिल हैं जिसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी और सरमायाकारों का एतमाद न सिर्फ बहाल हुआ है बल्कि वो सरमायाकारी भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आने वाली खबरें हैं जिसमें जैसे कि सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स के मुआहिदे हैं, इसके अलावा कतर की जानिब से 3 अरब डॉलर के मुआहिदे की खबरों ने भी सरमायादारों के एतमाद को न सिर्फ बहाल रखा है बल्कि जो है वो स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग मार्केट की सूरत में देख रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मार्केट को मजीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं।
ज़ीशान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। SIFC के ताउन से नाज़रीन, खुराक और दूध की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में ऑस्ट्रेलिया की महारत से इस्तेफादा करने का फैसला किया है। हुकूमत ने फसलों की फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत लाइव स्टॉक के मंसूबों में भी 20 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रही है। गोश्त की बरामद को यकीनी बनाने के लिए 4 लाख बछड़ों की अफजाइश नस्ल का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जंगलात की बहाली के लिए भी ड्रोन के जरिए निगरानी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी आगाही मुहिम्मात के लिए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आबी ज़राअत के शोबे में 100 एकड़ के रकबे पर झींगे की अफजाइश के लिए ऑस्ट्रेलियाई महारत की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, जिसके नतीजे में सालाना 100 टन पैदावार की तवक्को की जा रही है। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किसानों को 5 अरब रुपए की जदीद मशीनरी की फराहमी के अलावा धान की बाकियात के दोबारा इस्तेमाल की तरगीब भी शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्की मैशत की बहाली के मुसलसल कोशिश में है। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है। हुकूमती अहकामात पर मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ करते हुए बड़ी मकदार में आटा, खाद, गैर मुल्की कपड़ा, सिगरेट के स्टॉक्स और ईरानी तेल बरामद कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दिन 1 बजे के बाद समाअत करेगा। नए प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज दलाइल देंगे। डिवीजन बेंच ने एहतसाब अदालत को केस के हतमी फैसले से रोक रखा है। नैब की जानिब से रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के बायस लाखों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। खैबर पख्तूनख्वा में कौम के मेमार सरापा एहतजाज है। पेशावर में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल के बाइकॉट के बायस सूबे भर में बेशतर प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर अजीजुल्लाह खान का कहना है कि हुकूमत के वादा खिलाफी के बायस स्कूल्स बंद करने पर मजबूर हुए। मुतालिबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल का बाइकॉट और धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की मुअत्तली से तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा स्कूल्स की बंदिश ने वालिदैन को भी परेशानी में मुब्तला कर रखा है। पेशावर में जारी धरने में सूबे भर से प्राइमरी असातिज़ा शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद यूसुफ से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी, ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का जो एहतजाजी धरना है आज उसका तीसरा रोज़ है और जिना पार्क पेशावर के सामने उनका एहतजाजी धरना जारी है, जिसमें सूबे भर से हज़ारों की तादाद में असातिज़ा शरीक है। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई हुकूमत ने और महकमा तालीम ने जो तमाम जो ज़िले अफसरान हैं उसको मरासिला जारी किया था कि जितने भी असातिज़ा गैर हाजिर है, ड्यूटियों पर नहीं आते, उनको मुअत्तल किया जाए। तो इस हवाले से जो एप्टा के सदर है और जो बाकी अहदेदार है उनका यही कहना है कि हुकूमत जितने भी हर्ब इस्तेमाल करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी तहरीक पर, उनके मुतालिबात पर उनका एहतजाज भी जारी रहेगा, उनका जो स्कूल से बाइकाट है वो भी जारी रहेगा। असातिज़ा का कहना है कि जब तक हुकूमत उनकी अपग्रेडेशन और इसके अलावा जो दीगर मुतालिबात है जिसमें रेगुलाइजेशन एक्ट 2022 के मुताबिक उसमें CP फंड को GP फंड में तब्दील करना, रेगुलाइजेशन एक्ट में जो उनके जो से उनके असातिज़ा रह चुके हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता और जो क्लास वाइज असातिज़ा की भर्ती है तो उनका कहना है कि उनके मुतालिबात जब तक तस्लीम नहीं किए जाते उनका एहतजाजी धरना भी जारी रहेगा। और साथ ही जो स्कूल्स है उससे जो जिसमें मेल स्कूल भी है और फीमेल स्कूल भी है वो कह रहे हैं कि सूबे में 26,000 जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद रहेंगे, उसमें वो ड्यूटियाँ सर अंजाम नहीं देंगे और जो अभी मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया सज्जाद हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने पर अपने बयान में कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हरकत है। उन्होंने कहा कि विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को
تو ترقیاں اور اضافی تنخواہیں دی جاتی ہیں، مگر اپنا پرامن احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے گنڈا پور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جلسے جلوس کی آڑ میں فساد گروپ احتجاج ہمارا حق ہے کہ نعرے لگاتا ہے اور پنجاب میں کسان اور نابینا افراد کے کندھے استعمال کر کے فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہدائے جموں کو ان کی یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا ہے کہ 6 نومبر ہمیں شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور آزادی کے لیے کشمیری عوام کے عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کا قتل عام تاریخ کشمیر کا سب سے ہولناک واقعہ ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے گزشتہ 77 سال میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ علاقے میں مزید خون ریزی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے لولاب میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ 2 روز قبل ضلع بانڈی پورہ کے علاقے میں بھی ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کی نومنتخب قانون ساز اسمبلی نے دفعہ 370 کی بحالی کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما سریندر سنگھ چودھری نے پیش کی، جس میں خطے کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ بی جے پی کے ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی۔ بی جے پی ارکان کے 100 ارکان اسمبلی نے اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی، جس کے بعد اسپیکر نے اسے باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد کا مقصد اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے منسوخ کی گئی علاقے کی خصوصی حیثیت کو بحال کرانا ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کی سربراہی میں وفد نے مظفر آباد میں ملاقات کی اور اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ 6 نومبر 1947 جموں میں انسانی تاریخ کا ایک بدترین قتل عام ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 1947 سے مسلمانوں کی اکثریت اقلیت میں بدلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے کشمیر پر موقف سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارا قومی کاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد وہ رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو نقصان ہوا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت پاکستان کشمیر کاز کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوم شہدائے جموں کے مناسبت سے آزاد کشمیر بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب کشمیر مونیومنٹ مظفر آباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چومن دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ 6 نومبر کو قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہزاروں کشمیریوں کی یاد میں دعائیہ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ جموں کے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بزدل بھارتی فوج کشمیریوں کے آزادی کے جذبے کو کم نہیں کر سکتی۔ وہ دن دور نہیں جب جموں کشمیر بھی آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ بھارت کی دیگر ممالک میں تخریب کاری اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے عالمی سطح پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے دہشت گردانہ منصوبے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے بھارت پر کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کینیڈا واحد ملک نہیں جس نے بھارتی اہلکاروں پر غیر ملکی سرزمین پر قتل کی سازش کرنے کا الزام لگایا۔ پینی وانگ نے کہا کہ سکھ برادری سمیت دیگر لوگوں کو آسٹریلیا میں محفوظ پناہ اور احترام کا حق ہے۔ ہم کینیڈا کے عدالتی عمل کا احترام کرتے ہیں اور ان واقعات کی صاف اور شفاف تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پینی وانگ کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور تمام ممالک کی خود مختاری جیسے معاملات کے سلسلے میں ایک اصولی موقف موجود ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر سمیت کئی سکھ رہنماؤں کے ناموں پر مشتمل فہرست دی گئی تھی۔ کینیڈا کی حکومت نے تحقیقات کے بعد بتایا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کا حکم بھارتی انٹیلیجنس نے دیا تھا۔ بھارت کی جانب سے دنیا کے دیگر ممالک میں اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے کارروائیاں اب پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے سیکرٹری داخلہ کے ہمراہ گردوارہ جنم استان ننکانہ صاحب کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ پنجاب میں اقلیتی امور کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے
सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया और वहां बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मकामी सिख रहनुमाओं से भी मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। हमारा जीडीपी का 4% टूरिज्म से आ रहा है, हम उसको बढ़ा के 8 से 9% पे लेके जाना चाह रहे हैं। 121 ममालिक के लिए ऑनलाइन वीज़ा फ्री फैसिलिटी दे दी है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, इंटीरियर मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे कबल सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की सदारत में होने वाले इजलास के दौरान उन्हें भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए क़याम तआम और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बाकी तमाम वेन्यूज़ का भी हम विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो चाको चौबंद हैं, इनके डिप्लॉयमेंट प्लान्स देख के मन बहुत खुश होया। जिवें गुरुद्वारियां दा प्रबंध कीता रहा, सिक्योरिटी दा आने वाले गुरपुरब दे लई बहुत बड़ा कदम चुक्या उन्होंने ने, ते इसलिए देखो इत्थे रौनकां किन्नियां वध जाणी। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने जन्मदिन तकरीबात के मरकजी प्रोग्राम नगर कीर्तन की गुजरगांव का भी दौरा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद कहने और इनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी जंगें ख़त्म करने का ऐलान किया है। फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि वो अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे और इसे महफूज बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि सुनहरे दौर का आगाज होने वाला है। उधर आलमी रहनुमाओं की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। गजा और लेबनान पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद और 100 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शिमाली गजा के कस्बे बैतुल्लाहिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। बैतुल्लाहिया में इसराइली हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शिमाली गजा के इलाके तल अस्तार में इसराइली हमले में कम से कम 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा शहर के इलाके रिमाल पर इसराइली ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 43,391 हो गई। मगरबी किनारे के इलाके तलकरम पर भी इसराइली फोर्सेस ने हमले किए हैं, जिस पर शहादतों की इत्तला है। दीगर इलाकों में भी काबिज फ़ौज ने फ़लस्तीनों पर हमले किए। लेबनान में बैरूत पर सहूनी फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 40 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। हमले मशरक़ी इलाकों में वादी वक़ा और बलबक पर किए गए। बलबक हरमत सूबे के गवर्नर के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 40 हमले किए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इसराइली ज़राए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान गजा और लेबनान पर 100 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्मोक की शदीद सूरत हाल के बायस पंजाब में स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्मोक सीज़न के बाद स्पोर्ट्स गाला का ऐलान किया जाएगा। अपने एक बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मास्क की फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी है और मसाजिद से स्मोक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9,000 किसानों की तरबियत मुकम्मल करने के अलावा स्कूलों में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में ये भी बताया कि 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 FIR दर्ज की गई हैं और सूबाई हुकूमत के मज़ाफ़ात में कड़ी निगरानी और गश्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एंटी स्मोक मुहिम में महकमों और इंतज़ामिया के अलावा 3,850 रज़ाकार कमेटियाँ भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 382 अफराद को जुर्माने आयद किए गए और 28 अफराद को वार्निंग दी गई। फसलों की बाकियात जलाने पर 12 और ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 315 के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं।
इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में अब तक मजमूई तौर पर 1826 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। Dialogue on trade, energy and security, and enhance border management and people-to-people contacts. The Prime Minister of Pakistan condemned Israel's October 26th attack on Iran and reaffirmed Pakistan's support for Iran's sovereignty and territorial integrity. The two sides also discussed the situation in the Middle East and the ongoing genocide in Gaza. They reaffirmed support for the right to self-determination of the Palestinian people and for an immediate ceasefire, unhindered humanitarian assistance, and the creation of a Palestinian state with Al-Quds al-Sharif as its capital. We welcome the latest report of the UN Special Rapporteur on Palestine, Francesca Albanese, calling out Israel for pushing through a systematic agenda of forced displacement, annihilation, and genocide in Gaza and the West Bank. The report highlights how Israel has been committing genocide against the Palestinian people through acts of territorial expansion and ethnic cleansing. Pakistan endorses Ms. Albanese's stance that Israel is obstructing international investigation efforts, including denying the entry of fact-finding teams from the United Nations. We support her call on the international community in acting decisively in bringing an end to Israel's unbridled atrocities against the Palestinians and to ensure unhindered humanitarian assistance to Gaza and full financing and protection of UNRWA. Pakistan is also concerned about Israeli action against the relief workers and agencies, including UNRWA, and its continuous war on hospitals and vaccination centers. After destroying the health infrastructure in Gaza, Israeli occupation forces are now targeting hospitals in Lebanon. So far, 34 hospitals have been damaged, 111 emergency medical technicians have been killed, and 107 ambulances have been targeted in Lebanon. Such attacks on the humanitarian structures, agencies, and actors in Palestine and Lebanon prevents people from seeking urgent medical care while creating long-term health risks for millions, including children. Pakistan therefore calls for an immediate cessation of hostilities in Gaza, Palestine, and Lebanon, protection of civilians and civilian infrastructure, and unhindered humanitarian access and health care to those in urgent need. We are also concerned about the reports of deteriorating health of Kashmiri leader Muhammad Yasin Malik as he observes a hunger strike in protest for the poor conditions and insufficient medical care in New Delhi's Tihar jail. After being framed in fictitious cases, Mr. Malik remains incarcerated for the last several years and is facing a death sentence. We urge the Indian authorities to provide quality medical care to Mr. Malik and immediately release him. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. Now, announcements. Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will visit the Kingdom of Saudi Arabia to participate in the second joint Arab-Islamic summit being held in Riyadh on 11th of November. The summit is being convened at the initiative of the government of Saudi Arabia to discuss the situation in the Middle East.
This will be a follow-up to the joint Arab-Islamic Extraordinary Summit held on 11th of November 2023 in Riyadh to discuss the situation in Gaza and other occupied territories. Heads of states and governments and senior officials from Arab League and OIC member countries are expected to participate in the summit. At the summit, the Prime Minister will reiterate Pakistan's full support to the Palestinian cause. He will call for an immediate end to the genocide in Gaza, an urgent and unconditional ceasefire, immediate cessation of ongoing Israeli adventurism in the region that is endangering the security of the countries in the Middle East. Pakistan will also call for providing international protection for the Palestinian people and for the establishment of an independent state of Palestine on the borders of 4 June 1967 with Al-Quds al-Sharif as its capital. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to hold bilateral meetings with leaders from other Arab League and OIC member states. The Prime Minister of Pakistan will visit Baku, Azerbaijan, to participate in the World Leaders Climate Action Summit taking place on 12th to 13th of November as part of the 29th UN Climate Change Conference. The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and other cabinet members and senior officials. At the summit, the Prime Minister will make a robust call for climate solidarity and climate justice based on the established principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with participating world leaders. COP29 is taking place at a time when millions around the world, including in Pakistan, are facing severe adverse impacts of climate change. As an important stakeholder, Pakistan will continue to make positive contributions to the global climate debate, negotiations, and collective action. Thank you. बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थीं। खबरनामे में मौसम की खबरें शामिल करेंगे। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावज़ कर गया। स्मोक की वजह से गले, सीने और आंखों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ इफ्तिखार अहमद से। इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। इफ्तिखार अहमद हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लाहौर में स्मोक जो है उसका राज बरकरार है और एयर क्वालिटी 100 इंडेक्स जो है वो 700 से तजावज़ कर गया है और स्मोक की वजह से गले, सीने और आंखों के मरीज़ों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ इफ्तिखार अहमद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर जो इसके गिरदोनवा के इलाके हैं जहाँ पे स्मोक की जो सूरत हाल है इसमें इजाफ़ा देखा जा रहा है। अगर आज भी बात की जाए जो आलूदा तरीन शहर हैं तो इनमें लाहौर का आज सरफ़हरिस्त है। जबकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज सुबह 710 था, जबकि जो अभी है ये भी तकरीबन 500 है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो भारतीय पंजाब है वहाँ से आने वाली हवाएं हैं वो ज़्यादा मुतासर कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फसलों की बाकियात हैं उनको जलाया जाता है और जो भट्टों का धुआं है वो पंजाब की जानब आता है, जिसकी वजह से लाहौर और जो मुल्तान है, फैसलाबाद, गुजरांवाला यहाँ पे आलूदगी की शरह ज़्यादा है। इसी वजह से जो आलूदगी की जो शरह बढ़ रही है, इसी वजह से हुकूमत पंजाब ने इसके
निजारत के लिए इकदाम किए हैं। इसमें जो सर फहरिस्त है वो तो है कि शहरियों से कहा गया है कि वो घरों से कम निकलें, जबकि जो मास्क का इस्तेमाल है वो भी लाजमी करें। इसके अलावा जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है और ऑनलाइन क्लासों का कहा गया है, जबकि जो दफातर में हाज़िरी है उसको भी कहा गया है कि 50% लोग घरों से काम करें। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो सांस और गले के मराज हैं और आँखों के ये बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में इनके मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। अगर हम देखें कि ओवरऑल जो स्मोक है वो बढ़ रही है, इसी वजह से जो हुकूमत पंजाब है उसने लाहौर के चंद एरिया में ग्रीन लॉकडाउन भी किया है, जहां पे आज हाई कोर्ट ने भी एक हुक्म जारी किया गया है कि जो धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर हैं उनके चलाने पर पाबंदी आयद की जाए, इन पर सख्ती से अमल किया जाए और जो हॉट स्पॉट के एरिया हैं वहाँ से तजावज़ात को हटाया जाके ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो बिला तातुल जारी रहे, ताकि स्मोक जो है उसमें कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को है। जुमे के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को है, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब के चंद इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक हल्की धुंध की लपेट में रहे। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। और अब खबरनामे में शामिल कुछ मजीद खबरें। डेरा इस्माइल खान के नौजवानों और शहरियों में एहसास मलकियत को फ़रोग देने के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के तामुन से दीवार अमन व उम्मीद का इफ्तिताह कर दिया गया। ये काविश खुसूसी तौर पर नौजवानों ने डेरा इस्माइल खान के लिए माशरे के मुस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए की गई है। कदीम दरसगाहों में शुमार होने वाले गवर्नमेंट बॉयज़ इस्लामिया कॉलेज नंबर 2 की दीवार पर पाकिस्तान और DI खान की सकाफत, हीरोज़ और शहादा की तस्वीर बनाई गई हैं। इस दीवार के इफ्तिताह में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तकरीबी शुरका ने इस दीवार को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अपने मजबूत और आहनी ताल्लुक की अलामत करार दिया। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। आर्मी पब्लिक स्कूल लाहौर के बच्चों ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। लाहौर ग्रेजुएशन एजुकेशन सिस्टम के तलबा ने सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाया। पाकिस्तान का इंसानी झंडा बनाने में 10,000 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास था। भारत के 7,368 तलबा ने रवां साल इंसानी परचम बनाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाया था, जबकि पाकिस्तानी तलबा ने बड़े मार्जिन से भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नया आलमी रिकॉर्ड हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक्किद किए गए लाहौर यूथ फेस्टिवल में बनाया गया। मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने के बाद तलबा ने खूब जश्न मनाया। लाहौर यूथ फेस्टिवल के बाकी फाइनल मुकाबले 8 से 10 नवंबर तक फोर्टिस स्टेडियम लाहौर कैंट में मुनक्किद किए जाएंगे। इकबाल का शाहीन के उन्वान से लाहौर यूथ फेस्टिवल 2024 जारी है। फेस्टिवल के आखिरी मुकाबले 8 से 10 नवंबर को फोर्टिस स्टेडियम लाहौर में मुनाकिद होंगे। इस अजीमुशान फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को खेलों, फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, सकाफत, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करना है। फेस्टिवल के आगाज़ पर लाहौर की 28 बड़ी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूलों में फेस्टिवल का लोगो टूर करवाया गया। 8 से 17 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस टूर का मकसद नौजवानों में फेस्टिवल के बारे में तलबा को आगाह करना था। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, स्पीरियर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज म्यूजिक सोसाइटी, इंटरनेशनल स्कूल लाहौर और कनेड कॉलेज में कंप्यूटर कोडिंग, तकरीरी मुकाबले, स्टाल टूर्नामेंट, बास्केटबॉल चैंपियनशिप, नाद और क़िरात समेत दीगर मुकाबले मुनाकिद हुए। इनके अलावा 24 से 30 अक्टूबर तक अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में होने वाले टैलेंट फेस्ट, आर्ट कंपटीशन, मुकर्ररीन और बैटल ऑफ द बैंड्स के ऑडिशंस में 40 से ज़ायद तालीमी इदारों के तलबा ने शिरकत की। पंजाब स्टेडियम में 25 से 29 अक्टूबर तक खेलों के ट्रायल्स भी मुनाकिद हुए, जिनमें 100 मीटर दौड़, लंबी छलांग, जेवलिन थ्रो, ऊंची छलांग, ट्रिपल जंप, डिस्क थ्रो, पोल वॉलेट और रस्साकशी जैसे दिलचस्प मुकाबले शामिल थे। लाहौर यूथ फेस्टिवल में 8 से 10 नवंबर को फोर्टिस स्टेडियम लाहौर में शानदार इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें नौजवानों के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल होंगे।
اس کے علاوہ بڑی تقریبات میں بیٹل آف دی بینڈز، ٹیلنٹ فیسٹ، تھیم سانگ کمپٹیشن، ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایگزیبیشن، آرٹ ایگزیبیشن، کانسرٹ اور شاندار آتش بازی شامل ہیں۔ ناظرین، ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے زیر اہتمام یوم اقبال کی مناسبت سے رنگ رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب ایف سی ہیڈ کوارٹر ساؤتھ میں منعقد ہوئی، جس میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اسکول تربت، گورنمنٹ عطاشات ڈگری کالج اور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربت کے طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران طلبہ طالبات کے مابین شاعر مشرق و مفکر پاکستان علامہ اقبال کی قومی خدمات اور ان کی شاعری کے موضوع پر تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ انگریزی زبان کی تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن عطاشات ڈگری کالج تربت کے طالب علم شہزاد نے حاصل کی۔ اردو زبان کے مقابلے میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربت کی طالبہ شاہدہ نے اپنے نام کی۔ مقابلے کے اختتام پر مہمان خصوصی نے طلبہ طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ معاون خصوصی اطلاعات گلگت بلتستان ایمان شاہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں توانائی کے بحران کے پیش نظر وزیر اعظم نے 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے کو اپنی نگرانی میں 1 سال میں مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں پی ایچ ڈی کے جاری منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم نے بلتستان یونیورسٹی اور قراقرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے انڈومنٹ فنڈ کی منظوری بھی دی۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس جیل خانہ جات پنجاب رانا منان خان نے کہا ہے کہ صوبے کی جیلیں اب قیدیوں کے لیے جیل نہیں بلکہ درسگاہ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر جیلوں میں قیدیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ان کے لیے ماہر نفسیات بھی تعینات کیے گئے ہیں، جس کا مقصد قیدیوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے۔ شیخو پورہ میں ڈسٹرکٹ جیل کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانا منان خان کا کہنا تھا کہ نفرت جرم سے ہونی چاہیے، انسان سے نہیں۔ انہوں نے قیدیوں اور ملازمین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے احکامات دیے۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب برائے انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین نے منڈی بہاؤدین کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی تمام تر توجہ عوامی فلاح و بہبود پر مرکوز رکھیں۔ شہریوں کو بہترین خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ پرائز کنٹرول میجسٹریٹس اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی مسلسل نگرانی کریں۔ انہوں نے شجرکاری مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کے ہمراہ ڈی سی آفس کے لان میں بھی پودا لگایا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال اور گورنمنٹ سٹی اسپتال کے مختلف وارڈز کا بھی معائنہ کیا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ پنجاب بھر کی طرح ضلع ننکانہ صاحب میں بھی کامیابی سے جاری ہے۔ پروگرام کے تحت ضلع ننکانہ صاحب میں بھی گھروں کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ تحصیل شاہکوٹ میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کے تحت قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں میں لیٹرز تقسیم کرنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری بشیر طاہر نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک انقلابی اقدام ہے۔ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والوں کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل ہو چکی ہے اور لوگوں نے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی رانا محمد ارشد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب پہلے مرحلے میں صوبے کے 70,000 خاندانوں کو گھر کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ تک کا بلا سود قرض فراہم کر رہی ہے۔ شہری مریم نواز شریف کے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کو 77 سالہ تاریخ کا بڑا اور عوام دوست منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، یوریشین نیشنل یونیورسٹی نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کو اعزازی پروفیسر کے خطاب سے نواز دیا۔ انہیں یہ اعزاز پچھلی 3 دہائیوں کے دوران قاصد طلباء کی تحقیق اور تربیت میں نمایاں خدمات پر دیا گیا ہے۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کی سائنس اور میدان اور تعلیمی تعاون کے فروغ کے لیے کاوشوں کو اجاگر کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے الفارابی قازق نیشنل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ای این یو کے اپنے حالیہ دورے کے دوران انہوں نے کیمسٹری، جنرل بائیولوجی، جیونمکس، بائیو ٹیکنالوجی اور مائکرو بائیولوجی کے شعبوں کے سربراہوں کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان تحقیقی تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے وائس چانسلر پنجگور یونیورسٹی ڈاکٹر عبد الملک ترین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت تمام وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصاً دور دراز اضلاع کے طلبہ طالبات کو علم و ہنر سے آراستہ کرنے کی کاوشیں بھی جاری ہیں۔
बलूचिस्तान के ज़िला खुजार में हुकूमत की जानिब से पहला वुमेन कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया गया है। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बलूचिस्तान सारा अता बलोच ने हाल ही में बनने वाले खुजार वुमेन कॉम्प्लेक्स का तफसीली दौरा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत सूबा की ख़वातीन को तरक्की के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए इनकलाबी इक़दामात बरूएकार ला रही है। खुजदार में वुमेन कॉम्प्लेक्स की तामीर से यहाँ की ख़वातीन को न सिर्फ रोज़गार के मौक़े दस्तयाब होंगे बल्कि तशद्दुद की शिकार ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी में भी आसानियाँ पैदा होंगी। उन्होंने वुमेन क्राइसिस सेंटर खुजदार की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से।